दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार भाषण सुना रहा हूँ जो कि विश्व धर्म संसद शिकागो जो कि अमेरिका में है, 11 सितंबर 1893 को ये विश्व धर्म संसद शिकागो में आयोजित की गई थी। उसमें भारत का सनातन धर्म की ओर से प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया वो विश्व का सबसे बेहतरीन भाषण है। वो भाषण आज मैं आपको हिंदी और इंग्लिश, चूँकि उन्होंने वो भाषण इंग्लिश में दिया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुनाऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी एक साहब महान मतलब दिव्य महापुरुष थे। उनको वेदांत का, जीवन का, दर्शन का और धर्म शास्त्रों का साहब अद्भुत ज्ञान था। उतने मतलब दिव्य महापुरुष है। वैसे दिव्य महापुरुष साहब हजारों साल में एक आधे जन्म लेते हैं साहब। ये भी सुनने में आता है कि विवेकानंद जी का जो IQ पावर है, यादाश्त की शक्ति है, वो इतनी ज़्यादा थी साहब कि अगर वो किसी किताब को एक बार पढ़ लेते थे तो वो किताब पूरी की पूरी सेम टू सेम उनके दिमाग में डाउनलोड हो जाती थी। चाहे किसी भी लाइन को पूछ लो, किसी भी लाइन के किसी भी अक्षर को पूछ लो, इतनी तीव्र उनकी IQ पावर थी साहब। तो अब मैं वो जो विश्व धर्म संसद में उन्होंने जो भाषण दिया था उसको सबसे पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन सुनाऊंगा। ध्यान से सुना, बहुत ज़ोरदार है, बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत ही मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही विश्व धर्म संसद में उन्होंने खड़े होकर माइक पर यह बोलना शुरू किया कि अमेरिका के बहनों और भाइयों, तो साहब वो सभागार था पूरा तालियों की गड़गड़ा से गूंज उठा। क्योंकि अमेरिका जैसे वेस्टर्न देश में साहब, एडवांस देश में साहब, विकसित देश में साहब, ये आत्मीयता के, अपनेपन के शब्द उनको वर्षों बाद में कभी सुनने को मिले थे, कभी कभार ही सुनने को मिले थे। तो इस शब्द को, विवेकानंद जी के इन शब्दों को सुनकर के साहब वो बहुत ज़्यादा खुश है और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and all sections. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing of different lands, the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both the tolerance and acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all the religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all nations and of all religions of the earth. I am proud to tell you that we have gathered our bosom for the purest remnants of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by the Roman tyranny. I am proud to belong to a nation. I am proud to belong to a religion which has sheltered and still fostering the remnants of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, Vardhan, a few lines of a hymn which I remember and repeat many times since from my boyhood, and which is every day repeated by millions of human beings as the different streams having the different sources mingle their water in the sea. So, O Lord, the path which men take through their different tendencies, various though appear, crooked or straight, all lead to thee. This convention, which is one of the most august assemblies ever held,
is in itself a vindication, a declaration to the word of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whoever comes to me, whatsoever form I is to him, all men are stealing through pus, which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible dissidents, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence. They have filled the earth with violence, drenched it open with human blood, destroyed the civilization, and sent the whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, the human society would be far more advanced than it is now. But the time has come. I fervently hope that this morning, the bell that told this morning in the honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, of all persecution with the sword or with the men, of all uncharitable feelings between the persons wending their way to the same goal, wending their same goal. अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपने जिस गर्मजोशी और हार्दिक स्वागत का हमें अभिनंदन किया है, उसके फलस्वरूप उठ खड़ा होना मेरे हृदय को असीम आनंद से भर देता है। मैं विश्व के सबसे प्राचीन भिक्षु संघ की ओर से, मैं धर्मों की जननी की ओर से, मैं सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों और लाखों हिंदू लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। इस मंच पर उपस्थित कुछ वक्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पूर्व के वक्ताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सुदूर देशों के ये लोग विभिन्न देशों में सहिष्णुता का विचार फैलाने का गर्व प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उस धर्म से संबंध रखने पर गर्व है जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि हमने महान इजरायली अवशेषों को अपने भीतर समाया हुआ है, जो दक्षिण भारत आए और उसी वर्ष हमारे यहाँ शरण ली, जब रोमन अत्याचार द्वारा उनके सबसे पवित्र मंदिर को चकनाचूर कर दिया गया था। मुझे उस धर्म से संबंध रखने पर गर्व है जिसने महान पारसी राष्ट्र के अवशेषों को शरण दी और आज भी उनका लालन पोषण कर रहे हैं। भाइयों, मैं आप सभी को आज एक भजन की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, जिसे मैं बचपन से बार बार दोहराता आया हूं, जिसे लाखों मनुष्य प्रतिदिन दोहराते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की धाराएं अपना जल है वो समुद्र में मिला देती है, वैसे ही हे प्रभु, मनुष्य अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जो अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, चाहे वे सभी टेढ़े मेढ़े हो सीधे, सभी मुझ तक ही ले जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन जो अब तक आयोजित सबसे भव्य सभाओं में से एक है। स्वयं गीता में वर्णित अद्भुत सिद्धांत की व्याख्या, विश्व के समक्ष घोषणा। जो कोई भी किसी भी रूप में मेरे पास आता है, मैं उस तक जाता हूँ। मनुष्य अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जो अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, अंततः वो मुझ तक ही ले जाते हैं। संप्रदायवाद, कट्टरता और उसके भयावह वंशज धर्मांधता ने इस पृथ्वी पर लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखा है। इसे बार बार हिंसा से कारित किया है। इसे बार बार मानव रक्त से लथपथ किया है, सभ्यता को नष्ट किया है और संपूर्ण राष्ट्रों को निराशा में धकेल दिया है। यदि ये भयानक राक्षस ना होते तो मानव प्रजाति आज की तुलना में कहीं और अधिक उन्नत होती, किंतु उनका समय आ गया है। मैं पूरी आशा करता हूं कि आज सुबह इस सम्मेलन के सम्मान में बजी यह घंटी सभी प्रकार की धर्मांधता,
सभी प्रकार के कलम और तलवार से किए गए सभी प्रकार के अत्याचारों और एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर लोगों के बीच में सभी प्रकार की दुर्भावनाओं का अंत हो, सभी प्रकार की दुर्भावनाओं का अंत हो, सभी प्रकार की दुर्भावनाओं का अंत हो। मतलब यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने आज से लगभग 170-80 साल पहले हमारे सनातन धर्म का विश्व परचम है वो विश्व में लहरा दिया था साहब। इतने प्रचंड विद्वान थे साहब, संस्कृति की उन पे विशेष कृपा थी, धर्म शास्त्रों का, योग का, वेदांत का, जीवन का, दर्शन का उनका अद्भुत ज्ञान था। उनकी ऑटोबायोग्राफी और उनके जीवन दर्शन से संबंधित जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनका अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। बहुत मार्गदर्शक हैं और इंस्पिरेशन है। हमें सभी को उनके जीवन को बारे में अधिक से अधिक जानना चाहिए, उनसे संबंधित किताबों को पढ़ना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।